गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो सब लोग। आज फिर हम आपके लिए एक नई वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो में आज हमें क्या करना है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल सीखना है। मेथड्स ऑफ एल्कोहल्स ऑफ प्रिपरेशन में क्या करना है, सबसे पहली प्रिपरेशन होती है फ्रॉम एल्कोहल्स। एल्कोहल से वैसे बनाने के कई मेथड्स हैं। सबसे फर्स्ट मेथड आता है आपका बाय रिएक्शन ऑफ हेलोजन एसिड्स। हेलोजन एसिड्स बेसिकली क्या होते हैं मैं आपको बता दूं। हेलोजन्स के एसिड है। व्हाट आर द हेलोजन्स? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। उसकी जब H से रिएक्शन होती है, जो एसिड बनते हैं, दे आर कॉल्ड एज द हेलोजन एसिड। इन दिस केस alcohol, suppose ROH is treated with the HX. HX is the general formula of halogen acid. Then one H you can say and one OH combine together to form H2O and RX is formed, which is the haloalkane. One example is there. In this case I have taken C2H5OH. Ethanol मैंने लिया यहाँ पर और HCl से इसकी रिएक्शन कराएंगे. Again the same process. One H and one OH, H2O will form and the compound formed is C2H5Cl. And this reaction takes place in the presence of the anhydrous ZnCl2 and in the presence of heat because HCl is less reactive. अभी आगे बताऊंगा मैं क्यों less reactive। इसी तरह से ये था आपका primary compound. This is the primary alkyl alcohol. Therefore the compound formed is primary alkyl halide. Similarly, I have taken the secondary alcohol. CH3C, CH3H, OH. This carbon atom is secondary because it is attached to the two carbon atoms. Therefore, OH attached to the this carbon atom is called as the alcohol, secondary alcohol. Now the same process again. One H and one OH, H2 will remove and the chloro compound is formed. Similarly, if I am taking the 3-degree alcohol, in this case one H, same process, and one OH released to form H2O and the chlorine attached to this carbon atom to form the 3-degree alkyl halide. This is the secondary and this one is the tertiary. In this case, not one thing, this reaction is taking place at the room temperature because HCl 3-degree alcohols are more reactive. This is the order of reactivity of alcohols. 3 degree greater than 2 degree greater than 1 degree. वैसे तो ये नेक्स्ट चैप्टर की बात है, फिलहाल थोड़ा सा आइडिया लीजिए। In this case 3 degree alcohols are more reactive due to the presence of the 3 alkyl groups. They shows plus I effect. Plus I से क्या करते हैं, कार्बन पे पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाते हैं, कार्बन आगे पुश कर देता है, तो ये आपका बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन का मोर पोलर हो जाता है, जल्दी ब्रेक होता है, जल्दी रिएक्शन करता है। इसलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आपने याद रखना है, 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। सिमिलरली ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन एसिड्स भी ऐसे ही है, HI ग्रेटर देन HBr ग्रेटर देन HCl ग्रेटर देन HF। एक्चुअली क्या होता है, ये डिपेंड कर रहा है साइज पे। हाइड्रोजन एटम का जैसे जैसे साइज इंक्रीज हो रहा है, फ्लोरीन का सबसे कम है, क्लोरीन और ज्यादा है, ब्रोमीन और ज्यादा है, आयोडीन और ज्यादा है, ऐसे ऐसे बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है एंड बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड एंथैल्पी। आप इसको समझ ऐसे भी समझ लीजिए, HF का साइज छोटा था, HCl की बॉन्ड लेंथ और ज्यादा थी, HBr की बॉन्ड लेंथ और ज्यादा है, HI की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है। हाइयर द बॉन्ड लेंथ लेसर विल बी द बॉन्ड एंथैल्पी। ये वाला बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा, जल्दी ऐड करेगा। इसी तरह से मैं सेम रिएक्शन के लिए अभी हमने क्लोरो कंपाउंड्स बनाए हैं। नाउ फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द ब्रोमो कंपाउंड्स वी हैव टू टेक फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्रिपेयर HBr एंड फॉर द आयोडोअल्केन्स वी हैव टू प्रिपेयर HI। HBr बनाने के लिए मुझे क्या करना है, NaBr की रिएक्शन करानी है H2SO4 से। 1 H and 1 Br. HBr is formed and the compound remaining is NaHSO4. Now this HBr reacts with the ethanol. Suppose ethanol हमने लिया है, 1 H and 1 OH, same process repeats and the C2H5Br compound is formed. Similarly, for the preparation of the HI, I have taken Ki and H3PO4. We have to use Ki and H3PO4. Then 1 H and 1 I, HI is formed, combined together and HI is formed and the remaining compound is KH2PO4. ये बनता है potassium dihydrogen phosphate. Now this HI reacts with the ethanol. Same process repeats, 1 H and 1 OH to form H2O and the compound formed is CH5I. In this reaction, HBr and HI we have to prepare at the time of the reactions because they are very reactive compound. दोनों के दोनों बहुत reactive compound है। आप ऐसा नहीं इनको बना के रख लो, इनको at the time of reaction बनाना पड़ता है, but HCl is less reactive। आप इसको बना के भी रख सकते हो, लैब में आप देखते भी हो। Second method is by the reaction of the phosphorus halides। मैं अब की बार सेम अल्कोहल को यूज करूंगा बट रिएक्शन कराऊंगा फॉस्फोरस हैलाइड्स की, PX3 या PX5 इसके कंपाउंड होते हैं। दो तरह के Similarly, C2H5OH plus PCl5 gives C2H5Cl plus HCl plus POCl3। कैसे कैसे होती है रिएक्शन, 1H 1Cl, HCl is formed,
one C2H5 and one Cl. C2H5Cl and POCl3 will form. Similarly, if the reaction takes place with PCl3, remember that we have to take always 3 moles of alcohol, either in PCl3, either in PBr3 or in PI3. Then 3 moles of C2H5Cl plus H3PO3 is formed. Now again, for the preparation of the bromo and iodoalkanes, first of all we have to prepare PBr3 and PI3 because they are the reactive compound and they have to prepare at the time of the reaction by the reaction of red phosphorus and Br2 or red phosphorus and I2 at the time of reaction. P4 plus 6Br2 gives 4PBr3. Then same reaction repeat, 3 times of C2H5OH, only change is there, Br is there. PCl3 था वहाँ पर, यहाँ पर PBr3 है. Then the 3 times of C2H5Br plus H3PO3. ये 3 times of C2H5 है और ये 3 times of Br है, ये बन जाएगा C2H5Br plus H3PO3. Similarly, for the preparation of the iodo compounds, I have to prepare PI3 first of all. P4 plus 6I2 gives 6PI3. Again, this compound reacts with the 3 moles of the ethanol to form 3 times of C2H5I plus H3PO. This is the method for the preparation of bromo and iodoalkanes. For क्लोरो के हम पहले कर चुके हैं. Next is by the reaction of the thionyl chloride. Thionyl chloride एक compound होता है SOCl2 इसको बोलते हैं. C2H5OH plus SOCl2 reacts together. 1H, 1Cl, HCl is removed. 1SO and 1O, SO2 is removed, and the main compound is C2H5 and Cl. C2H5Cl compound is formed. This method is generally preferred for the preparation of the chloro compounds because in this method SO2 and HCl are the side products which are formed in the gaseous form and remove itself. Therefore, chloro compounds are formed at the in the pure state. इसमें प्योर बनते हैं, इसमें क्लोरो कंपाउंड बनाना है तो इसी को प्रीफर करते हैं. ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से. नेक्स्ट मेथड इज फ्रॉम हाइड्रोकार्बन. उसमें भी सबसे पहले हम लेते हैं फ्रॉम एल्केन्स. एल्केन्स में सपोज मीथेन हमने ले लिया, ये रिएक्शन आपने 11th में करी हुई है वैसे तो. क्लोरीन से रिएक्शन करते हैं. देन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट 1H 1Cl इज रिमूव्ड, HCl, रिमेनिंग कंपाउंड इज CH3Cl. दिस प्रोसेस कंटिन्यूज. अगेन Cl2 is taken in the presence of sunlight, HCl is removed, 1H 1Cl, compound formed is CH2Cl2. Process repeat, 1H 1Cl, HCl is removed, CHCl3 is formed. Again process repeat, chlorine in presence of sunlight, HCl is removed, then CCl4 is formed. This reaction takes place up to which all हाइड्रोजन एटम्स हैव बीन रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन एटम. जब तक सारे के सारे हाइड्रोजन एटम क्लोरीन से रिप्लेस नहीं हो जाते तब तक होती है. सिमिलरली मैंने एक कंपाउंड लिया प्रोपेन, रिएक्ट्स विद द क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, HCl इज रिमूव्ड. अब देखिए HCl यहाँ पे रिमूव होने के 2 चांसेस हैं, जब तो इस कार्बन से या इस कार्बन से. टर्मिनल दोनों कार्बन प्राइमरी है, सेकेंडरी कार्बन सेंटर वाला कार्बन है. इससे यदि आप रिमूव करते हैं तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, और प्राइमरी से रिमूव करते हैं कहीं से भी, इधर से या लेफ्ट से या राइट से, तो ये कंपाउंड बनता है. दिस कंपाउंड जनरली फॉर्म एज ए माइनर प्रोडक्ट. ये माइनर है, ये वाला मेजर है, बिकॉज इसमें आपका जो कार्बोकेटाइन बनेगा दैट इज प्राइमरी कार्बोकेटाइन, जबकि इस केस में जो कार्बोकेटाइन बनता है वो सेकेंडरी बनता है, मोर स्टेबल होता है. एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है इस केस में. फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द आइडो कंपाउंड्स we have to use Ki and H3PO4. Why H2SO4 cannot be used in the reaction या for the preparation of the HI or for the reaction of the alcohol to form the iodo compound. हम इसमें H2SO4 को क्यों नहीं यूज कर सकते, H3PO4 को क्यों यूज करना पड़ रहा है? Because H2SO4 is a concentrated, H2SO4 is a strong oxidizing agent, और जो strong oxidizing agent होता है बना देगा HI no problem, but it can further oxidize HI into I2. तो I2 में चेंज कर देगा, ये रिएक्शन आपकी नहीं होगी फिर. That's why we have to use H3PO4 in place of H2SO4. मुझे ये यूज करना है, ये वाला H2SO4 यूज नहीं करना है. ये NCERT का आपका एक क्वेश्चन भी है. Now the next preparation from the alkenes. Alkene से कैसे प्रिपरेशन करता है? CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl. मुझे इसमें ऐड करना है HCl, तो क्या करना है CH3 CH2 और Cl बन जाएगा. लेकिन क्या ध्यान से देखिए, ये पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट. फिलहाल ये आपका एल्कीन जो है सिमेट्रिक एल्कीन है. सिमेट्रिक एल्कीन पे H कहीं भी जोड़ो, Cl कहीं भी जोड़ो, इस पे कोई मार्कोनिकोव या एंटी मार्कोनिकोव रूल अप्लाई नहीं होता है, जैसा आपने 11th में भी पढ़ा होगा. H फिलहाल मैं यहाँ जोड़ रहा हूँ इस कार्बन पे, और Cl मैं यहाँ इस कार्बन पे जोड़ता हूँ. ये बन गया आपका CH3, दिस बिकम्स CH2 एंड Cl. सिमिलरली नाउ CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. प्रोपीन हमने लिया, आपकी बार HBr कंडीशन करना है,
वही इस तरह का ही अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है, बट अब की बार मार्कोनिकोव रूल अप्लाई होना है। कैसे होना है? नेगेटिव पार्ट ऑफ अटैकिंग एजेंट गोज टू दैट कार्बन विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो नेगेटिव पार्ट को कहाँ ले जाना है? उस कार्बन पे ले जाना है जिसपे हाइड्रोजन का नंबर कम है। तो ये आपका Br यहाँ अटैच होगा, ये बन गया CH और ये H आपका यहाँ अटैच हुआ, ये बन गया CH3। हमेशा जब भी ध्यान रखना है डबल बॉन्ड पे एडिशन करेंगे तो वो खत्म हो जाता है, डबल बॉन्ड कन्वर्टेड टू द सिंगल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड होता तो वो डबल बन जाता, डबल है तो सिंगल बन गया। मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग ये कंप्लीट हुआ है। सिमिलरली सेम रिएक्शन कैन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ द पेरोक्साइड। यदि आप यही रिएक्शन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में करते हैं तो एंटी मार्कोनिकोव रूल लगेगा, ध्यान रखना है। नेगेटिव पार्ट ऑफ अटैकिंग रिएजेंट गोज टू दैट कार्बन विच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। जिस पे मोर होंगे हाइड्रोजन एटम उसी पे आपको अटैच करना है। मोर का मतलब ये नहीं है यहाँ अटैच करने लग जाओ, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड नहीं है, एडिशन तो सिर्फ डबल बॉन्ड पे होना है, तो आपने वो H यहाँ अटैच करना है। नेगेटिव पार्ट सॉरी, ये यहाँ अटैच करो, ये यहाँ, तो क्या बन गया आपका CH3 CH2 CH2 Br। ये एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग रिएक्शन हुई है। एक छोटी सी बात और ध्यान रखनी है आपको, एंटी मार्कोनिकोव रूल इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द एडिशन ऑफ HBr। एंटी मार्कोनिकोव रूल कभी भी HCl या HI पे नहीं लगता है। HCl में बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो ब्रेक नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है, और HI में फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है, बॉन्ड ब्रेक होता है, HI से फिर आयोडीन फ्री रेडिकल बनते हैं, बट दीज आयोडीन फ्री रेडिकल्स आर सो रिएक्टिव दैट दे कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म I2। ये I2 बना लेते हैं कंबाइन करके, वो फिर आपका फर्दर रिएक्शन नहीं कर पाते। दैट्स व्हाई मार्कोनिकोव एंटी मार्कोनिकोव रूल इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द एडिशन ऑफ HBr। नाउ यदि आपको डाई हेलोजन कंपाउंड बनाना है, सिंपल आप हेलोजन का एडिशन कर सकते हैं। यहाँ मैंने हेलोजन एसिड्स का किया था, CH2 डबल बॉन्ड CH2 Cl2 है, एक Cl आप यहाँ अटैच कर दीजिए, एक Cl आप दूसरे पर अटैच कर दीजिए, ये बन गया CH2Cl CH2Cl। नेम बना सकते हैं आप इसका IUPAC 1,2 डाइक्लोरोइथेन। सिमिलरली Br2 का एडिशन आप कर सकते हैं, एक Br यहाँ अटैच कर दिया हमने, एक Br यहाँ पर, इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 CH3 CHBr CH2 Br। ये जो CCl4 है यहाँ पर एज ए सॉल्वेंट काम कर रहा है, कई जगह आता है CCl4 तो एज ए सॉल्वेंट काम करता है। इससे कोई कंफ्यूज मत होना, ऑर्गेनिक रिएक्शन में जो एरोमेट लिखे होते हैं वो जनरली एज ए कैटलिस्ट नहीं हो सकते, हो सकता है कैटलिस्ट हो, जनरली वो एज ए सॉल्वेंट हो सकते हैं, वो कुछ और भी कंपाउंड हो सकते हैं। नेक्स्ट मेथड इज बाय हैलाइड एक्सचेंज मेथड। इसमें सबसे पहले आता है बाय फिंकस्टीन रिएक्शन। फिंकस्टीन रिएक्शन में क्या करना है, कोई भी आपका एल्काइल हैलाइड हो, R मीन्स एल्काइल ग्रुप, X मीन्स हैलोजन, X में क्लोरीन या ब्रोमीन हो सकता है, Na I से रिएक्शन करते हैं। दिस मेथड इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आइडो एल्केन्स ओनली। जब भी आपको आइडो बनाने हैं कंपाउंड, आप इस मेथड को यूज कर सकते हो बाय हैलाइड एक्सचेंज। क्लोरो या ब्रोमो कंपाउंड हम यूज करेंगे और आइडो से इसको रिप्लेस करेंगे। Na X will remove and Ri compound will form where X is equal to chlorine or bromine। मैंने एग्जांपल ले लिया यहाँ पर C2H5Cl plus NaI, then Na and Cl, this NaCl is formed and C2H5 compound I is formed। Similarly, if the C2H5Br is taken, then NaBr is formed and C2H5I is formed। Now here acetone is used, which is used as a solvent, not as a catalyst। Next method by Schwarz reaction। ये भी important reaction है, दोनों नेम रिएक्शन है, अच्छी तरह से याद करनी है। Schwarz reaction में क्या करते हैं, फ्लोरो एल्केन्स के प्रिपरेशन के लिए यूज करते हैं। ये ऐसा नहीं कि क्लोरो वगैरह बनाते हैं, सिर्फ only fluoroalkanes can be prepared। In this method, bromo और chloroalkanes are treated with halides। सिल्वर फ्लोराइड हो सकता है, कोबाल्ट फ्लोराइड हो सकता है, मर्क्यूरस फ्लोराइड हो सकता है, या एंटीमनी फ्लोराइड हो सकता है। Then the halide exchange can take place, one Ag, one Br, you can see there AgBr is formed, then CH3F is formed, main compound। Similarly, Hg2 and Cl2 combine together to form the Hg2Cl2 mercurous chloride, and this C2H5 group combined with fluorine to form the C2H5F fluoro compound। By this method, remember that by this method only fluoro compounds can be formed, while the by Finkelstein reaction you can prepare only ido compound, not chloro or bromo compounds। Last method is there by Borodine-Hunsliker reaction। This is a specific reaction, it cannot be used anywhere, it can be used only for the preparation of the bromo compounds। In this method, silver salt of the fatty acid is used, treated with the Br2 in the presence of the CCl4 as a solvent, then one Ag, one Br is formed, AgBr, CO2 is removed from here, and the CH3 react with the Br to form the CH3Br, means bromo alkanes can be formed। एक बात और नोट कीजिए, यहाँ पर कार्बन का नंबर भी कम हो गया। यहाँ पर 2 कार्बन का सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड था, यहाँ सिंगल कार्बन करेंगे, ठीक है ना।
इंजेक्शंस को पढ़िए अच्छे से। ये आज हमने प्रिपरेशंस कंप्लीट कर ली है। किसी को इसका इंट्रोडक्शन या किसी ने इनका नहीं किया हो तो इसका मेरा पिछला वीडियो है वो देख सकते हैं आप, इससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये नेम रिएक्शंस भी हैं, ये कन्वर्जन्स में हमें यूज़ करनी है, बिल्कुल एज इट इज़ याद कीजिए, लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए, जितना लिखोगे तो उतना ही आपको अच्छे से याद हो जाएगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।